Hello everyone, welcome to Prosperity Group. Today we will discuss something important with you since we had a lot of inquiries about company formation in Qatar and how to establish a company under the new law of 100% ownership business in Qatar. Today we have the right person to ask. So our CEO is here. Let's catch him for a quick discussion. Hi, good morning boss. Good morning. Hi, Siva. How are you today, boss? I'm very good, Siva. How are you doing today? I'm good, thank you. So for the last few days, we are receiving a lot of queries about company formation in Qatar. So I wanted to have a quick discussion for you, and I will request to answer me in English and Hindi. So my first question is, why one should start a business in Qatar? Well, Siva, there are a lot of reasons to start your business in Qatar these days. जिसमें number one reason ये है कि Qatar की जो economy है, it's a very stable economy. There is no VAT, value added tax यहाँ पर नहीं है. Unlike the other countries in GCC, Qatar is one of the safest countries in the world. इसकी जो safety है वो इसकी अपनी एक USP है. और उसके बाद जी जो geographical location है वो बहुत अमेजिंग है. कतार की हेल्थ स्टैंडर्ड्स हैं, एजुकेशन स्टैंडर्ड्स हैं, वो बहुत अमेजिंग है एज कम्पेयर टू इट्स सराउंडिंग कंट्रीज. और इट गिव्स यू अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज टू स्टार्ट एनी सॉर्ट ऑफ बिजनेस. और बिजनेस को फ्लरिश करने के लिए, ग्रो करने के लिए जो गवर्नमेंट की सपोर्ट है इस वक्त, इट्स अमेजिंग. इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग to start your business in Qatar is there is a huge support by the government organizations. They encourage you, they support you. So yes, Qatar is best these days in the market. So do you think it's a good idea to start these days a business in Qatar? As we have just discussed, right time to start the business in Qatar. उसके बहुत सारे reasons हैं कि अभी कतर में आपको business क्यों start करना चाहिए या अपनी कंपनी क्यों बनानी चाहिए. नंबर वन के गवर्नमेंट ने 90% जो फीसेस हैं उसको वेव कर दिया होगा. जहां पर आप ये समझें कि आपके 50,000 लगते थे लाइसेंसिंग और कंपनी बनाने के लिए, आप 5,000 लग रहे हैं. इट्स आइडियल टाइम. बात करें अगर हम बाकी जीसीसी कंट्रीज की, जिसमें एज यू नो कि 6 कंट्रीज हैं जीसीसी के अंदर. यूएई है, कतर है, कुवैत है, बहरीन है, सऊदीया है एंड ओमान है. तो उसके अंदर बहुत सारे कंट्रीज इस वक्त अपनी पॉलिसीज के हिसाब से दे आर नॉट आइडियल टू स्टार्ट द कंपनीज राइट नाउ. कुछ नेशनैलिटीज के लिए देयर आर अ लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस. जैसे हम पाकिस्तानी नेशनल्स की बात कर लें, बांग्लादेश नेशनल्स की बात कर लें. सो देयर आर अ लॉट ऑफ कंट्रीज विच आर नॉट फ्रेंडली टू दीज नेशनल्स. और उन पर रिस्ट्रिक्शंस हैं कि वीज़ा नहीं ले सकते या कंपनी नहीं बना सकते. सो कतर में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है. एवरीबडी इज़ वेलकम. You can open business, any sort of company. There are a lot of activities given, by the government कि आप किस तरह का business कर सकते हैं. So I would say this is the right time. Number one reason, government fees are reduced. Number two, the reason is that as compared to the other GCC countries, it's more welcoming market. So it is possible to have a 100% foreign ownership company in Qatar now? Yes, Siva, it's 100% possible. As you know कि पूरे गल्फ के अंदर एक कफील सिस्टम होता है. I mean, if you are in UAE, you need to have Emirati partner in your company. अगर आप कतर में हैं तो आपको कतरी लोकल की ज़रूरत होती है to be your कफील in your company. You cannot have a complete licensing process without कतरी कफील इन योर कंपनी. ऐसा पहले होता था, अब भी होता है. लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया कि लोगों की डिमांड को देखते हुए, जो लोग चाहते थे कि हमें किसी पार्टनर की ज़रूरत नहीं है, किसी कफील की ज़रूरत नहीं है अपनी कंपनी में, हम 100% अपनी कंपनी के खुद ओनर हों, हम 100% डिसीजन मेकर हों, हमारी अप्रूवल के साथ किसी को वीज़ा मिले, किसी का वीज़ा कैंसिल हो, बैंकिंग सारे जितने भी मैटर्स हैं उसको हम खुद हैंडल करें. सो हमें लोकल पार्टनर नहीं चाहिए. सो गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड just almost 2 years back the 100% foreign ownership companies in mainland. फ्री जोन में मैं आपको बताता चलूँ कि तकरीबन 12-14 साल से फ्री जोन में कंपनीज 100% ओनरशिप पे बनती थी. बट उसके कुछ ड्रॉबैक्स ये हैं कि उसके अंदर वो आइडियल है B2B के लिए, B2C के लिए नहीं. आप बिजनेस टू बिजनेस के लिए आइडियल है. आप किसी ऐसे बिजनेस में हैं जिसमें आपको डायरेक्ट B2B चलना है, बिजनेसेस के साथ डील करना है, वॉक इन क्लाइंट्स या आपको रैंडम क्लाइंट्स के साथ डील नहीं करना. बहुत सारी उनकी जो पॉलिसीज थी स्ट्रिक्ट थी, ऑडिटिंग बहुत स्ट्रिक्ट थी. सो दैट वाज नॉट आइडियल फॉर एवरीवन. सो पीपल वर डेस्परेटली लुकिंग फॉर the 100% ownership companies in mainland
जहां आप पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कहीं भी दोहा में, कतर में अपना ऑफिस बना लें, B2B करें, B2C करें, और एज कम्पेयर टू दी रिस्ट्रिक्शंस एंड ऑडिटिंग पॉलिसीज एंड द एक्सपेंसेस ऑफ कोर्स इज मच रीजनेबल देन दी फ्री जोन कंपनीज। तो आप अब अपना बिजनेस कतर में बना सकते हैं, कंपनी बना सकते हैं 100% ओनरशिप के अंदर, जिसके अंदर कोई लोकल पार्टनर नहीं होगा, लोकल का 51% शेयर, आपका 49, ऐसा सीन नहीं होगा। आप 100% ओनर होंगे। आपको कोई मंथली कफालत नहीं देनी, जैसे यूएई में ईयरली कफालत होती है, कतर में मंथली कफालत होती है। आपको कफील को देने पड़ते हैं डिपेंडिंग ऑन योर टर्म एंड कंडीशंस जो आपके डिसाइडेड है, 2000, 3000, 4000 रियाल। अब वो भी नहीं है। आपको अच्छी डिस्काउंटेड प्राइस में 100% ओनरशिप कंपनी बनाने की अपॉर्चुनिटी सब अवेलेबल। Boss, what is an average cost for establishing a business in Qatar? आपने छोटी सी ग्रॉसरी बनानी है, उस पर आपकी हो सकता है 50-60 हज़ार रियाल की इन्वेस्टमेंट हो जाए। आपने बहुत बड़ी हाइपर मार्केट बनानी है तो उसमें लाखों की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। आपने एक बार्बर शॉप बनानी है या आपने एक कैफ़े बनाना है तो 40-50 हज़ार रियाल में आपका पूरा बिजनेस सेटअप हो जाता है। ये मैं लाइसेंसिंग की कॉस्ट नहीं बता रहा आपको, ये मैं पूरा बिजनेस सेटअप की कॉस्ट बता रहा हूँ कि आपने एक शॉप लेनी है, उसके अंदर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, रेनोवेशन करनी है, सारा कुछ प्रिपेयर करना है, इक्विपमेंट्स लाने हैं, तो ये उसकी एक कॉस्ट है। अगेन जोग्राफिकली इट डिपेंड्स कि आप एक पोर्श एरिया में अगर अपना वही सैलून बना रहे हो जो एक नॉर्मल एरिया में 50,000 का बनता है, तो वहाँ हो सकता है 1 लाख रियाल का बन जाए। वहाँ पे रेंट ज़्यादा होगा, वहाँ पर बाकी चीज़ें हैं महंगी होंगी। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, आप एरिया कौन सा चूज कर रहे हो। एक नॉर्मल बिजनेस ऑन एन एवरेज 40-50,000 रियाल में, कतरी रियाल में आपका बन जाता है। So how do you assist your clients for establishment of a business in Qatar? Yes, Sivar, we are giving the complete assistance to our clients in establishing a company in Qatar from point A to point B. Everything is done by us and taking you through quickly the steps and stages of this process of making a company, right starting from choosing your trade name, बिजनेस प्लान हम बनाते हैं, बिजनेस प्लान अप्रूवल हम करते हैं, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हम कराते हैं, उसके बाद आप कहीं पर भी हैं अपने कंट्री से बैठ के यहाँ तक स्टेप आप करवा सकते हैं। आप इस स्टेज के बाद यू नीड टू बी हियर फिजिकली प्रेजेंट इन कतर, क्योंकि आपका जो प्रेजेंस यहाँ पर ज़रूरी है कि आपको मिनिस्ट्री में जाना होता है और आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आपका कमर्शियल रजिस्ट्रेशन, आपकी टैक्स इशुएंस, आपका वीज़ा कोटा अप्रूवल, ये सब उस सेम डे में हम करवा देते हैं। उसके बाद आपका कमर्शियल परमिट का प्रोसेस होता है, आपका एस्टेब्लिशमेंट कार्ड, आपका ट्रेड लाइसेंस, आपको जैसे मैंने बताया कि 10-12 वीज़ों का कोटा अप्रूव हम करवा के देते हैं, और फाइनली आपका अपना वीज़ा, आपका जो प्रोसेस है मेडिकल का, वीज़ा एप्लीकेशन सबमिशन का, अंटिल कतर आने तक, कतर आईडी बनने तक का आपका जो पूरा प्रोसेस है वो हमारी सर्विसेज में शामिल होता है। Okay, boss, the last questions. What is an average living cost in Qatar? The living cost depends on the area where you are living, the house or the apartment size, studio 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK. You are staying somewhere far from the city center, it's way cheap. But if it's within the city center, in nearby some main attractions and all, it would be a little bit expensive. Then it depends the number of family members you have. For a single is different, for a couple is different, having kids is different. Then again depending on the kids कि वो स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज गोइंग है, यूनिवर्सिटी गोइंग है, सो ये सारी चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है। तो मेन फैक्टर्स यही हैं कि आप एरिया किस में रह रहे हैं, कि फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, उनके एक्सपेंसेस कितने हैं, स्कूल, एजुकेशन एंड ऑल। एक कपल का अगर बताया जाए या एक छोटी फैमिली, मतलब हस्बैंड वाइफ और साथ 1-2 बच्चे हैं और वो स्कूल या कॉलेज की स्टेज में हैं, तो मेरे ख्याल में 5-6 हज़ार रियाल, 7 हज़ार रियाल में एवरेज अपना गुजारा कर सकते हैं। एक सिंगल बंदे की बात करें जिसका पर्पस सिर्फ यहाँ सेटल होना है, काम करना है, बिजनेस करना है, तो वो तो शायद 3-4 हज़ार में भी गुजारा कर लेगा। सो ये डिपेंड कर रहा हो। एक कपल की लिविंग कॉस्ट 5 हज़ार भी हो सकती है और 50 हज़ार भी हो सकती है। आप लग्जरियस लाइफ गुजार रहे हैं तो फिर कतर में 50 हज़ार भी कुछ भी नहीं है, और अगर एक एवरेज आप कर रहे हैं तो ये चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं आपकी चॉइसेस के ऊपर, आपके लिविंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर। वैसे देखा जाए तो कतर इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव कंट्री, चीज़ें ठीक हैं, एवरेज हैं, बट आपकी स्पेंडिंग पर डिपेंड है। Okay, boss, thank you for your time and information. You're welcome, Sima. Thank you.